is smaller than over the set of eggs in a box is. अभी चेक करना है whether this is reflexive, symmetric, transitive या फिर equivalence. Now let us consider an egg A. Now an egg A cannot be smaller than, okay, this cannot be smaller than, suppose ये symbol हम use करते हैं इस smaller than के लिए, it cannot be smaller than itself. अब सपोज दो एग्स लेते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन चला गया. अब सपोज दो एग्स है ए एंड बी, सो इफ ए इज स्मॉलर देन एग बी देन इसका रिवर्स इज नॉट ट्रू, सो बी will be greater than or rather it will be bigger than egg A. ओके तो सेम रिलेशन ट्रू नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा. सो इफ A is smaller than B then B is greater than or you can say it is bigger than A. अब ट्रांजिटिव लेते हैं, ये तीन एग्स के लिए लेते हैं, से A B C and yeah, so if A is smaller than B, B is smaller than C, then obviously A is smaller than C. तो yes, यहाँ पे ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A. Is equal to over the set of all rational numbers. So again we have to check whether it is symmetric, then symmetric से पहले reflexive, symmetric, transitive या equivalence. Now every rational number say A will be equal to itself. So yes, it is reflexive. Then if A is equal to B, suppose A and B are two rational numbers and if A is equal to B, then obviously बात है B will be equal to A. So this implies B will also be equal to A. So yes, it is symmetric. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. If A is equal to B and B is equal to C, therefore we could conclude that A is equal to C. तो yes, ये ट्रांजिटिव भी है और ये तीनों होने के वजह से we could say this is an equivalence. So इसका सही आंसर है ऑप्शन D. Has the same father as over the set of children. So let us check whether it is reflexive, symmetric, transitive या फिर equivalence. Now every person A will have the same father as himself or herself. तो ये तो condition verify होता है. Then if A has the same father as B, then B will have the same father as A. ये भी condition satisfy होती है. Then if A has the same father as B, B has the same father as C, then A will also have the same father as C. So this is also satisfied and hence we could say this is an equivalence, which is option D. Is perpendicular to over the set of straight lines in a given plane. So let us check whether it is reflexive, symmetric, transitive या फिर equivalence. Now let us consider line A. Now line A cannot be perpendicular to itself. Yes, it can be parallel. अगर इसका हम reflection भी ले, it can be parallel but not perpendicular. तो reflexive तो ये नहीं है. अब सिमेट्रिक के लिए हम दो लाइंस कंसिडर करते हैं ए और बी. सो सपोज वी से ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, लाइन ए परपेंडिकुलर टू लाइन बी. सो यस वी कैन से लाइन बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन ए. तो ये सिमेट्रिक तो हुआ. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं बिटवीन थ्री लाइंस. सपोज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये लाइन ए है, इट इज परपेंडिकुलर टू बी and say B is perpendicular to line C, then A और C ये perpendicular नहीं आ रहे हैं, ये parallel आ रहा है. So यहाँ पे ये relation change हो रहा है. So this is not transitive. So but obvious ये equivalence भी नहीं होगा.
So the correct answer is symmetric, which is option B. Is the reciprocal of over set of non-zero real numbers. So let us check whether it is reflexive, symmetric, transitive, या none of these. Now a non-zero real number is not always equal to its reciprocal, unless ये number हमने 1 लिया है तो ही ये equal होगा, बाकी सारे numbers के लिए ये applicable नहीं है. So it is not reflexive. So suppose we have two numbers a and b such that if a is 1 upon b, so yes, we could say b is also equal to 1 by a. So yes, it is symmetric. अब transitive देखते हैं. So if a is reciprocal of b and b is reciprocal of c, तो यहाँ से imply होता है a and c are equal. तो यहाँ पे is the reciprocal of exist नहीं होता, so इसलिए ये transitive नहीं है. So the correct answer is option A, symmetric. Ordered pair xy where the element x belongs to set say x and y belongs to set y, और यहाँ पे दिया है y is equal to x. So basically हमें चेक करना है ये वाला relation is equal to. अब let us check first reflexive, फिर symmetric, फिर transitive and equivalence. Now every number that is real number, say a, will be equal to itself. Okay, so yes, it is reflexive. Then if x equal to y, then obviously y will also be equal to x. या फिर अगर हम x की value suppose a ले लेते हैं और y की value b लेते हैं. So if a is equal to b, therefore b will also be equal to a. So yes, it is symmetric. अब ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन वैल्यूज कंसिडर करनी पड़ेगी, से a, b and c. So if a is equal to b and b is equal to c, then a is also equal to c. तो ये भी satisfy हो रहा है, and hence the answer is option D, equivalence. For ordered pair xy, यहाँ पे हमें दिया है x plus y is equal to 2x. So from here we could get y is equal to, now 2x minus x, ये हो जाएगा x. So basically we have to check the relation is equal to, देखिए y is equal to x, right, for the set of positive integers. So reflexive, symmetric, transitive, equivalence. Every positive integer, say a, will be equal to itself. So yes, it is reflexive. Then if a is equal to b, then this implies b will also be equal to a. So yes, it is symmetric. Then if a is equal to b and b is equal to c, this implies that a will also be equal to c. So yes, it is transitive, and hence the answer is option D, equivalence. Is the square of for set of real numbers. So again let us check for reflexive, symmetric, transitive. Now real number, say a, is not always equal to the square of itself, unless ये value 1 है या फिर 0 है, तो ये हमेशा true नहीं रहेगा. This is not always true, इसलिए इसको हम reflexive नहीं बोल सकते हैं. Then if a is the square of b, so this does not mean that b is square of a. b in fact क्या हो जाएगा, square root of a हो जाएगा. So this is not symmetric. Then if a is the square of b and b is the square of c, so this does not mean that a is the square of c, right? a is not equal to c square. तो यहाँ पे transitive भी नहीं आता है. So the answer is D, none of these.
If A has 32 elements, that is n of A is 32, B के है 42 elements, n of B is 42, and number of elements in A union B ये है 62, then we have to find the number of elements in A intersection B. Suppose इसे हम X नाम दे देते हैं. Now we know that by addition theorem n of A union B होता है n of A plus n of B minus n of A intersection B. Now this value is 62, ये है 32, this is 42 minus x, ये x को इस तरफ ले लेते हैं, ये 4, ये आ जाएगा 74 minus 62 which is equal to 12. So intersection में 12 elements है, so the correct answer is option A. In a group of 20 children, 8 drink tea but not coffee, and 13 like tea. Then the number of children drinking coffee but not tea is. तो इसे Venn diagram से हम solve कर सकते हैं. Suppose this is a set of students having tea. This is the set of students having coffee. This is the set of students having tea and coffee. हमें दिया गया है total 20 students है, यानी ये पूरा union 20 students का है. 8 drink tea but not coffee, यानी ये वाला part, only this part. So this is 8. 13 like tea. अब ये पूरा अगर हम सर्कल कंसिडर करें, इसमें 13 स्टूडेंट्स है, सो 13 है तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 5, बिकॉज 8 and 5 is 13. तो ये इंफॉर्मेशन यूज कर लिया, ये भी कर लिया. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, यानी हमको सिर्फ ये पोर्शन ढूंढना है, ओनली कॉफी वाला. सपोज वी कॉल दिस एज एक्स. अभी अगर तीनों कैटेगरीज को हम ऐड करते हैं, 8 plus 5 plus x, so this total must be 20. तो ये आ जाएगा 13 plus x is equal to 20. तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलती है 7. So the answer is option B. The number of subsets of the set 6, 8, 11 is. अब इसमें if we count, there are 3 elements. इसका cardinal number है 3. n is equal to 3. And we know that number of subsets is given by 2 raised to n. So that is 2 cube. अब 2 cube is equal to 8. तो इसका सही आंसर है option C. अब यहाँ पे set V दिया है और कहा गया है x जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. x plus 2 equal to 0. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है एज -2. तो इसका जो एलिमेंट होगा वो होगा -2. वैसे ही सेट r दिया है, इसमें भी जो x है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. इक्वेशन हमें दिया है x² plus 2x is 0. अगर x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x into x plus 2 that is equal to 0. तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलती है, x की 0 एंड दूसरी वैल्यू आती है -2. सो बेसिकली ये सेट के जो एलिमेंट्स है वो है 0 एंड -2. वैसे ही एक और सेट दिया है, सेट S. x इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो x² plus x minus 2 is 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x plus 2 and x minus 1 is equal to 0. Then from here अगर इसको equal to 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है -2 and दूसरी वैल्यू है 1. So basically इस सेट के एलिमेंट्स है -2 and 1. अब हमें पूछा गया है अगर ये तीन सेट्स को हमें इक्वल करना है देन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए. सो बेसिकली ये तीनों कब इक्वल होंगे, जब तीनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे. एंड इफ यू कैन सी ऑल द 3 सेट्स हैव -2. देखिए राइट, तो ये तीनों सेट इक्वल तब होंगे जब वी हैव x इक्वल टू -2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A.
इफ ई इज द यूनिवर्सल सेट, इसमें x पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 25, दैट इज फ्रॉम 1 to 25, ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट्स दिए हैं, देन विच ऑफ देम इज ट्रू. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये वाला अगर स्टेटमेंट हम देखें, दिस इज एक्चुअली योर डी मॉर्गन्स लॉ, सो ओबली दिस कैन नॉट बी फॉल्स. तो बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इज इनफैक्ट द डी मॉर्गन्स लॉ. तो ये स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट होगा. तो ऑप्शन ए इसका आंसर है. अगर ये देखें तो यस, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे होते हुए. सो यस, दिस इज वेरी एविडेंट, दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट. तो इसका सही आंसर बाय डिफॉल्ट इज ऑप्शन ए. If set P has three elements, that is number of elements in P is 3, Q has 4 elements, number of elements in set Q is 4, and number of elements in set R is 2, then number of elements in P क्रॉस Q क्रॉस R, यानी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें ढूंढना है. इट इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपली 3 into 4 into 2. Now 3 4s is 12, 12 2s is 24. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. So remember, if set A has m elements, set B has n elements, then number of elements in A cross B is m into n. तो दो सेट की जगह पर यहाँ पे 3 सेट दिया हुआ है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं. सो द रिजल्ट इज 24, विच इज ऑप्शन सी. अब यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो है 2 3, ये सेट बी और ये सेट सी के एलिमेंट्स है. हमें पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. तो सेट ए तो है, अभी बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं. बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ 5 है. अब इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ए का एंड बी इंटरसेक्शन सी का. सो ए क्रॉस B intersection C will be set of all the ordered pairs. तो दो ही ordered pairs आएंगे, एक आएगा 2 5 और दूसरा आएगा 3 5. So this is the answer, 2 5 3 5. So the correct answer is option A. A town has a population of 50,000. Out of it, 28,000 read newspaper X and 23,000 read Y, and 4,000 read both the papers. Number of persons not reading X and Y both is. Okay, so ये आ गया हमारा set X, that is people reading newspaper X. फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया set Y, people reading newspaper Y, और ये intersection reading both X and Y. अब 28,000 रीड X, मतलब ये पूरा X वाला सर्कल, 23,000 रीड Y, एंड जो बोथ है वो है 4,000. सो ओनली X की अगर हम बात करें, ओनली X, तो ये 28,000 में से हम ये 4,000 लेस कर देते हैं, तो ओनली X आ जाएगा हमारा 24,000. वैसे अगर ओनली Y का हमें काउंट ढूंढना है तो इसमें से लेस 4,000 कर देते हैं, तो ये आ जाता है 19,000. So 24,000 read only X, 19,000 read only Y, 4,000 read both, and suppose जो रीड नहीं करते हैं ये सेट के बाहर होंगे, दैट इज से A, और ये सबको मिलाकर टोटल पॉपुलेशन है 50,000, यानी 24,000 प्लस 4,000 प्लस 19,000 प्लस A है जो नॉन रीडर्स है, and this total is 50,000.
तो 24 एंड 4 28, अब 28 एंड 19 ये हो जाता है 47, सो दिस इज 47,000 प्लस ए इज 50,000, सो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है 50,000 माइनस 47,000, सो दैट इज 3,000, सो 3,000 रीड नाइदर एक्स नॉर वाई, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सेट ए इसके एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 5 7 एंड सेट बी के एलिमेंट्स है 1 3 6 10 15। हमें पूछा गया है कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यानी ओनली ए, राइट, दैट इज ए और बी का डिफरेंट सेट जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है। अभी हम a माइनस बी इजिली ढूंढ सकते हैं, सो बेसिकली a माइनस बी इंडिकेट्स द एलिमेंट्स विच बिलोंग ओनली टू a, तो a में से हम कॉमन एलिमेंट्स निकाल देंगे जो b में भी प्रेजेंट है। अभी 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, तो लेट मी राइट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 5 7, अब इसमें से जो जो बी के एलिमेंट्स है वो हम रिमूव कर देंगे, तो 1 बी का एलिमेंट है ये हम रिमूव कर देते हैं, 2 नहीं है, 3 है बी का एलिमेंट ये रिमूव कर देते हैं, 5 बी में प्रेजेंट नहीं है, 7 भी बी में प्रेजेंट नहीं है, सो ओनली ए के अगर हम एलिमेंट्स देखें दे आर 2 5 एंड 7 बिकॉज 1 एंड 3 is shared with b also, so only a, that is a minus b, इसके elements are 2 5 and 7, so there are 3 elements, so number of elements in a minus b is equal to 3, so the correct answer is option a. Which other diagram is the graph of a function? तो इसे हम vertical line test से easily check कर सकते हैं, तो अगर हम vertical lines बनाएं और अगर वो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट में से पास होगी then we say that graph represents a function or it is a graph of a function. अभी यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, देखिए 3 पॉइंट्स में से पास हो रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स, सो यस दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऑप्शन सी देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो एक टैंजेंट एक पॉइंट में से जाएगा, लेकिन ये अगर दूसरी वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो ये 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है एंड हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे भी इधर तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए, राइट, अगर यहाँ से हम लाइन पास करते हैं देन इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, दिस वर्टिकल लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। बट इफ यू सी ऑप्शन बी, नो मैटर जहां भी हम वर्टिकल लाइन बनाए इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट पे ही हो रहा है, देखिए एक एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्शन हो रहा है, यस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। At a certain conference of 100 people, there are 29 Indian women. Okay, so Indian women है 29 and 23 Indian men. Indian men है 23. Out of these Indian people, 4 are doctors. ये इंडियन लोगों में से डॉक्टर्स 4 है, सो देर आर इंडियन डॉक्टर्स विच आर 4 एंड 24, ये ग्रुप की बात हो रही है, 24 आर ईदर मेन और डॉक्टर्स, देर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स, तो हमें पूछा गया है वुमेन डॉक्टर्स कितनी है, ये हमें काउंट ढूंढना है। ओके, सो नंबर ऑफ इंडियन मैन, ये पूरा इंडियन लोगों का ही डेटा दिया हुआ है बेसिकली, सो इंडियन मैन है 23, देन मैन और डॉक्टर यानी एम यूनियन डी, तो ये है 24, दिस काउंट इज 24, देन नंबर ऑफ डॉक्टर्स ये है 4, सो यहाँ से मेन डॉक्टर्स हमें मिल जाएंगे, इंडियन मेन हु आर डॉक्टर्स, सो वी नो दैट एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, दैट इज मेन हु आर डॉक्टर्स विल बी एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी
माइनस n ऑफ m यूनियन d। ये एक्चुअली एडिशन फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। नॉर्मली यूनियन इधर होता है और इंटरसेक्शन इधर, हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। सो लेट अस सी द मेल डॉक्टर्स। मेल्स है यहाँ पे 23, टोटल डॉक्टर्स है 4 एंड मेन और डॉक्टर्स ये है 24। सो ये हो जाता है 27 माइनस 24, 27 माइनस 24 दैट इज 3। सो टोटल डॉक्टर्स में से 3 मेल्स है। सो बेसिकली वी हैव 3 मेल डॉक्टर्स एंड टोटल डॉक्टर्स है 4। उसमें से अगर 3 मेल्स है सो नंबर ऑफ वुमेन या फीमेल डॉक्टर्स, सो द वुमेन डॉक्टर्स विल बी, टोटल 4 है उसमें से 3 मेन है, सो फाइनल आंसर आता है 1। सो देयर इज 1 फीमेल डॉक्टर या वुमेन हु इज अ डॉक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1। अब यहाँ पे सेट ए, इसके एलिमेंट्स दिए हैं ए एंड बी। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज। तो पहले इसके हम सबसेट्स लिखते हैं, बिकॉज 2 एलिमेंट्स है। सो 2 रेज टू एन वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो 4 सबसेट्स आएंगे इसके। उसमें एक तो होगा हमारा नल सेट, फिर होगा एलिमेंट विद सेट ए, फिर होगा एलिमेंट विद सेट बी और फिर द सेट इटसेल्फ। तो ये 4 जो है ये ए के सबसेट है और ये सबसेट का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। और हमें पूछा गया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज एक्चुअली द नंबर ऑफ सबसेट्स विच इज इक्वल टू 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। Out of 2000 employees, 48% preferred coffee, 54 liked tea and 64 used to smoke. Out of 28%, out of the total, 28% use C and T, 32% use that is tea and smoking, and 30% coffee and smoking, and 6% none of these. The number having all the three is. तो इसे हम वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सेट हो गया कॉफ़ी का, देन दिस विल बी फॉर टी एंड दिस विल बी फॉर स्मोकिंग। अभी ये है 48%, लेट अस कीप इट इन परसेंटेज। फिर टी वाले है 54, देन स्मोकिंग का है 64, देन C and T is 28%, यानी ये पोर्शन C intersection T, this is 28, then 32 is T and S, this is 32 over here, and 30 is C and S, the C intersection S, this is T intersection S, ये है 30, ओके, एंड 6% नन ऑफ दीज, तो उसे हम बाहर रखते हैं। हाउ मेनी हैव ऑल 3, यानी ये जो मिडिल पोर्शन है x, ये हमें ढूंढना है। तो एक्चुअली हम ये फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हैं। इफ यू नो द एडिशन फॉर्मूला n ऑफ C यूनियन T यूनियन S, ये अगर 100% हम अज्यूम करते हैं, इसमें से 6 लेस कर देंगे, सो -6, दिस शुड बी इक्वल टू n ऑफ C प्लस n ऑफ T प्लस n ऑफ S माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन T माइनस n ऑफ T इंटरसेक्शन S माइनस n of C intersection S plus n of
C intersection T intersection S. So we have used the addition formula for 3 sets. अब ये हम 100% अज्यूम करेंगे. So this is 100. ये सब मिला के, ये 6% को मिला के, रादर सिर्फ ये पोर्शन चाहिए. सो 100 माइनस 6 हमने किया है. देखिए, सो दिस इज 100 माइनस 6 इज इक्वल टू, C में है 48, T का है 54, S का 64, C and T that is 28, T and S is 32, C and S is 30 and all 3 is X. तो यहाँ से हमें X की वैल्यू मिल जाएगी. ये आ जाएगा 94. इस तरफ आएगा 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 32 माइनस 30. ये आता है 76 plus x. So therefore x is equal to 94 minus 76. ये आ जाता है 18%. बट हमें नंबर चाहिए. So number of people having all three, C intersection T intersection S, will be 18% of the total. Total है 2000 लोग. So 18% of 2000. ये दो zeros गए. 18 2s is 36. तो इसका आंसर आता है 360. अब 360 है ऑप्शन ए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ रिफरिंग टू डेटा ऑफ क्वेश्चन 21. अब 21 में हमने ये वैल्यू 18 ढूंढ ली है. हमें पूछा गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी. T and S यानी ये पोर्शन 32 बट नॉट C, तो उसमें से 18 लेस कर देंगे. सो इट विल बी T and S बट नॉट C. सो दैट विल बी 32 माइनस 18. ये लेस करते हैं. 32 माइनस 18, एक मिनट, 32 लेस 18 इज 14. लेकिन ये 14% हुआ. So 14% of the total है 2000. So 14% of total आता है 280. So yes, the answer is option B, 280. Now referring to data of question 21, the number of employees preferring only coffee. So number of employees preferring only coffee will be. अब अगर ये पूरा हम कंसिडर करते हैं तो ये तो हो जाता है हमारा 100%. इसमें से हम जो टी एंड स्मोकिंग वाले हैं उनको हम लेस कर देंगे और ये 6% ये भी लेस कर देंगे. And T union S can be easily obtained by the addition formula A union B वाला. So it is A प्लस B माइनस द इंटरसेक्शन. अब T और S का इंटरसेक्शन है 32. सो दिस बी N ऑफ T प्लस N ऑफ S माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन S. और ये 6% भी हम कर देंगे प्लस, यहाँ पे आएगा 100. सॉरी. सो दिस इज 100 माइनस 54 प्लस 64 माइनस 32. ये आता है 86 एंड माइनस 6. सो 100 माइनस 86 माइनस 6, 100 माइनस 86 माइनस 6. तो ये आ जाता है हमारा 8%. अब 8% ऑफ द टोटल है 2000. सो 8% ऑफ 2000 इज 160. सो 160 पीपल प्रेफर ओनली कॉफी. तो ओनली कॉफी के लिए ये पूरा जो यूनिवर्सल सेट है 100%, उसमें से हमने टी और स्मोकिंग वाले निकाल दिए और ये जो 6% है जो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं वो भी लेस कर देते हैं. तो रह जाएगा सिर्फ ओनली कॉफी वाला रीजन. सो 100 में से T यूनियन S हमने लेस कर दिया. अब T यूनियन S का फॉर्मूला हम यूज करेंगे N ऑफ T प्लस N ऑफ S माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन S. और ये 6% जो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं. तो फाइनली आता है ओनली कॉफी का 8%. सो 8% ऑफ 2000 इज 160. सो द आंसर इज ऑप्शन C.
अब यहाँ पे दिया है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड फंक्शन g ऑफ x ये दिया है x स्क्वायर और हमें कॉम्पोजिट फंक्शन पूछा गया है g कॉम्पोजिट ऑफ fx. सो इट इज g के अंदर हम fx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो g ऑफ fx विल बी fx का स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर. बट f ऑफ x है x प्लस 3. सो वी जस्ट पुट इट हियर. तो ये रहेगा x प्लस 3 का स्क्वायर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. If f of x is equal to 1 upon 1 minus x, then f inverse of x is. So suppose we say let y be equal to f of x. तो यहाँ से हमें मिलेगा x will be equal to f inverse of y. तो इसे हटा के हम y लिख देते हैं. So y is 1 upon 1 minus x. Now this is y in terms of x. इसे हम change करेंगे x in terms of y. तो ये इधर लेके आते हैं. So 1 minus x is 1 upon y, bringing x here. So 1 minus 1 upon y is equal to x. So therefore x is equal to, ये equalize करते हैं तो ये आएगा y minus 1 upon y. But x is f inverse of y. So therefore f inverse of y is y minus 1 upon y. Now just replacing the variable. So we could say f inverse of x will be x minus 1 upon x. तो पहले इसे y से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. Let f of x be y. So this is y in terms of x. So we convert this to x in terms of y. तो आपको सिर्फ राइट हैंड साइड देखना है और यहाँ पे x डाल देना है. तो x minus 1 upon x, that is f inverse x, which is option B.